Good morning, dear students. Welcome back to the class. We are studying our lesson number 1, that is rational numbers. In the previous lecture, what we have studied? We have studied about the representation of the rational numbers on the number line, in which we have to divide 0 to 1 parts in the equal parts equals to the denominator. जितना भी denominator लिखा होता है उतने equal parts में हम divide करते हैं, उस हिसाब से हम representation करते हैं. ठीक है. There is your next topic, that is existence of a rational number between any two rational numbers. What is the meaning of this heading? That means अगर आपको बोला जाएगा कि बताओ 1/2 और 3/4 के बीच में कौन सा नंबर एग्जिस्ट करता है, रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो आप कैसे बता पाओगे कि इन, जैसे आपको पूछे कि 3 और 6 के बीच में कौन से दो नंबर्स आते हैं. ओके. If I am asking you to tell me two integers which comes between the 3 and the 6, your answer will be, ma'am, 4 and 5. Okay, you will directly say, ma'am, 4 and 5 comes between the 3 and 6. But if I ask you to tell me which two numbers come between the 1/2 and the 5/2, you are unable to tell me which two rational numbers exist between 1/2 and 5/2. Okay, so today we are studying how to find out which numbers exist between the two rational numbers. Okay, so for this I am not taking any explanation because there is directly the examples based on this. Okay, so I am solving the question number 1 of exercise 1F, so that from this you will understand how to find out the rational numbers between the two numbers. Okay, that means I am explaining you the existence by the question. Okay, so I am taking exercise 1F. I will write it here. Okay, exercise 1F, question number 1. Okay, so what is your question number 1? Read it out. Find one rational number between 5 and 6. आपको वो पूछ रहा है, you have to tell one rational number between 5 and 6. You have to tell only one rational number here. Okay, you in the question it may be asked write the two rational numbers or the three rational numbers, but in this question it is given that you have to find out only one rational number. Okay, जब हमें निकालना होता है कि किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कौन सा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करोगे, जो दो रैशनल नंबर जिनके बीच में आपको निकालना है, आप क्या करोगे, उन्हें पहले ऐड करोगे. सपोज इन दिस क्वेश्चन कौन से दो नंबर्स दिए, 5 and 6. फर्स्ट राइट डाउन द सॉल्यूशन एज one rational number between, आप सेम प्रोसेस रैशनल नंबर्स के लिए यूज करते हैं. यहाँ पे आपको इंटीजर्स के बीच का रैशनल नंबर पूछा है, आपको रैशनल नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर पूछेगा तो भी आपको यही करना है. ओके, सो द वन रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, वन रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6 इज इक्वल टू, कैसे करते हैं, आपको किन दो नंबर्स के बीच में पूछा है, 5 and 6. so add both of them, add both these numbers, so it is 5 plus 6. okay, if you are, आपको निकालना नहीं है. ठीक है, आप क्या करोगे, जो दो नंबर्स के बीच में आपको पूछा है आप उन्हें क्या करोगे, ऐड, और जो भी आपका आंसर आएगा आप उसे करोगे डिवाइड बाय 2 ऑलवेज. आप हमेशा किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे. जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे आपको एक आंसर मिलेगा, वही वो रैशनल नंबर होगा जो 5 and 6 के बीच में एग्जिस्ट करता है. ओके, सो व्हेन there is a question, you have to tell which rational number is exist between the two rational numbers or the integers. You can find out by adding both the end points and dividing the your answer or the sum by the 2. So we will find out here, that is 11 divided by 2, that is equals to, you can write it 11 by 2 as this. Okay, you can write it out 11 by 2 like this. Okay, चलो अच्छे से लिख लेते हैं, आपको ताकि समझ में आए. It is equals to 11 divided by 2 and you can write it as 11 upon 2, because हम इसे ऐसे 5.5 क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम इसे 5.5 क्यों नहीं लिख रहे हैं बोलो,
इसको आप 5.5 भी लिख सकते हो, आपका डिवाइड करोगे तो 5.5 आने वाला है, ठीक है। बट इन योर क्वेश्चन इज डायरेक्टली मेंशन दैट यू हैव टू राइट द रैशनल नंबर। आपको बोला है रैशनल नंबर लिखना है। रैशनल नंबर जो होता है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, 10 11/2 लाइज मतलब रहता है, ठीक है, लाइज बिटवीन 5 and 6। ओके, दैट मींस 11/2 है जो 5 और 6 के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अभी आपको समझ में अगर एक ही रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों एंड पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is find two rational numbers between -4 and -2। That means आपको बताना है -4 और -2 के बीच में कौन से दो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अभी देख लो इस क्वेश्चन में पूछा है, उसमें आपको कितने बताने हैं, दो रैशनल नंबर्स बताने हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन फॉर द सेकंड इज द रैशनल नंबर which lies between -4 and -2। आप क्या निकालोगे, सबसे पहले तो पहला वाला नंबर निकाल लो, एक तो निकाल लो, दो निकालने के लिए पहले एक तो निकालना पड़ेगा। सो द रैशनल नंबर which lies between -4 and -2 is equals to what we have to do, we have to add both of them, है ना। हमको क्या करना है, दोनों एंड पॉइंट्स को ऐड करना है। सो वी आर एडिंग हियर -4 and -2 हियर, ओके। तो ऐसे लिख लो, इस ब्रैकेट में लिख लो -4 + -2 डिवाइडेड बाय, इसे डिवाइड करते हैं 2, ओके। सो दोनों का सिंबल माइनस है तो ऐड होगा 6, बट हमेशा याद रखना सिंबल किसका लगता है, बड़े वाले नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया -4 का सिंबल दैट इज -6, ओके, डिवाइडेड बाय 2। व्हेन यू आर डिवाइडिंग -6 by 2 योर आंसर इज -3। तो आपको एक नंबर तो मिल गया, -3 वो नंबर है जो -4 और -2 के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये आपने तो फाइंड आउट कर लिया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सेकंड रैशनल नंबर, ठीक है। नाउ we will find out the second rational number between, ठीक है। देखो अब आपको ये तो पता है कि अगर आपको एक ही निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, दोनों एंड पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइड बाय। दूसरा निकालना है तो आप क्या करोगे, जो नंबर आपका पहला निकला है, जो आपने फर्स्ट रैशनल नंबर निकाला है, उसको एक एंड पॉइंट के साथ लो, जैसे -4 और -3 के बीच का एक नंबर निकाल लो, ठीक है। सो द रैशनल नंबर बिटवीन -4 and -3। आप ये भी ले सकते थे, मैंने -4 and -3 लिया है, आप ले सकते थे -3 and -2। अगर आप वो निकालोगे तो आपका थर्ड रैशनल नंबर में निकल जाएगा कि तीसरा रैशनल नंबर कौन सा है जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपको अभी लेकिन दो ही निकालना है, -4 ले लो या -2 ले लो, दोनों में से कोई। जब आपको 3 निकालना है बोलेगा तो क्या करना, फर्स्ट रैशनल नंबर निकालना, फिर जो आपका आंसर है उसको एक बार फर्स्ट वाले एंड पॉइंट के साथ लो और सेकंड टाइम इसी -3 को आप सेकंड वाले एंड पॉइंट के साथ, तो आपको दो और रैशनल नंबर्स मिलेंगे जो -4 और -2 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, ओके। नाउ वी विल फाइंड आउट द सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन -4 and -3। क्योंकि देखो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको निकालना है 3 and 10 के बीच में कौन सा नंबर आता है, ठीक है। 3 and 10 के बीच में, सॉरी आई विल टेक 9 है, 3 and 9 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड, 3 and 9 दैट इज 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6, ठीक है। 6 आपका एग्जिस्ट किया, ये आपका पहला नंबर है, कैसे निकाले आपने, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। अब आपको और भी कुछ नंबर्स निकालने हैं, तो
आपको दिया है -4 here, -2 here, you will find out -3 है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, -4 और -3 के बीच में। उसके बाद अगर तीसरा निकालना होगा तो निकालेंगे -3 और -2 के बीच में। ओके, so -4 and -3 in the same way, in the same, okay, so for this what we have to do, -4 plus -3 divided by 2, that is equals to -7 divided by 2, that you can write it as -7 upon 2, that you can write it as -7 upon 2. So the second rational number which lies between -4 and -2 is -7 upon 2. Okay, you will find out in the same way. Last in the last you can write hints. The two rational numbers, as the two rational numbers. What is given in question? Okay, the two rational numbers between -4 and -2. -4 and -2. Is it visible to you? No. Are -3 and -7 upon 2. ठीक है, ये वो दो रैशनल नंबर्स है जो -4 और -2 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ना कैसे निकालते हैं, अगर एक ही नंबर निकालना है, दोनों नंबर्स आपको दिए हैं जिसके बीच में का नंबर आपको निकालना है, आप उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हो। ठीक है, जब सेकंड नंबर निकालना होता है तो जो आपने पहला वाला रैशनल नंबर निकाला है उसको आप एंड पॉइंट के साथ लेते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैं आपको पहले एक टाइप का बता देती हूँ। राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 and 5/6, 1/3 and 5/6. So the rational number, the rational number which lies between 1/3 and 5/6, 1/3 and 5/6 is it 1/3 and 5/6, it is equals to 1/3 और 5/6 को ऐड करेंगे and divided it by 2. Okay, so we will write it as, आप इसका डिनोमिनेटर भी 6 कर लो तो ये हो जाएगा 2/6 plus 5/6. ओके, और जब डिवाइड करना होता है तो फर्स्ट फ्रैक्शन एज इज, सेकंड का होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, सो इट विल बिकम 7/6 multiply with 1/2, that is 7/12. Okay, the first rational number which lies between 1/3 and 5/6 is 7/12. Okay, now we will find the second rational number. Now we will find the second rational number. Now we will find the second rational number lies between. Now we will find the second rational number between 1/3 and 7/12. Okay, so it will become 1/3. कहाँ से आया 1/3 and 7/12? 1/3 आपके क्वेश्चन में गिवन है, 7/12 आपका फर्स्ट रैशनल नंबर है। ठीक है, so 1/3 plus 7/12 ऐड करोगे and divided it by 2 and we will divide it by 2. Okay, so we have to make the denominator 12 here, so we will multiply here by 4 and in the numerator also 4, so it will become 4/12 plus 7/12
and for the division, first fraction as it is and write the reciprocal of second, so that is 1 upon 2. We will add both of them, so it will become 11 upon 12. Multiply with 1 upon 2, so it is 11 upon 24. So the second rational number which lies between 1 by 3 and 5 by 6 is 11 upon 24. कैसे निकालते हैं? पहला वाला निकालते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2. सेकंड वाला निकालते हैं, एक एंड पॉइंट ले लो कोई भी और जो पहला वाला रैशनल नंबर आया उसके बीच में. नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द थर्ड रैशनल नंबर. ओके, याद रखना सेकंड वाला एंड पॉइंट है 5 by 6. ओके, so now we will find the third rational number between क्या था आपका एक और एंड पॉइंट 5 by 6 and 7 by 12. so add both of them, so 5 by 6, ये 5 by 6 का आंसर है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो. इसके पहले हमने 1 by 3 दिए थे जो एक था. दो नंबर्स आपको गिवन है, तो पहले हमने 1 by 3 दिए, सेकंड टाइम हम 5 by 6 ले रहे हैं. ठीक है, so here 7 by 12 and divide both of them by 2. so to make the denominator 12, we multiply here by 2 and in the denominator also numerator also it will become 10 upon 12 plus 7 upon 12. okay, and multiply by 1 upon 2. it will become 17 upon 12 multiply with 1 upon 2 and it is equal to 17 upon 20. so this is your third rational number which lies between 1 by 3 and 5 by 6. so in the last write, at the last write hence the two rational numbers, hence the three, hence the three rational numbers between 1 by 3 and 5 by 6 are, first नंबर क्या आया था हमारा 7 by 12. ओके, उसके बाद हमारा क्या आया था 11 upon 24 and in the last we get the 17 upon 24. so these are the three rational numbers which lies between 1 by 3 and 5 by 6. okay, so solve question number 4, 5, 6 because they are same as the question number 1, 2, 3. ठीक है, आप ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 6 and question number 7 is how many rational numbers are there between 1 and 0. वो पूछ रहा है कि 1 और 0 के बीच में कितने rational numbers होते हैं. so you have to write 7 का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही लाइन का है जो आपको लिखना है. there are, okay, so you have to write what we have said 1 by 0, 1 और 0 के बीच में कितने rational number होते हैं. so there are countless rational numbers between 1 and 0. क्योंकि दो नंबर्स के बीच में, दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, इसलिए हमने लिखा है कि काउंटलेस मींस जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. सो यहाँ पे बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं. सो हियर एक्सरसाइज 1 is completed and with this we have completed our lesson number 1 also. so our 4 lessons completed, 1, 2, 3, 4, but in your examination only second, third and fourth lesson are coming. so practice them well. we are taking in the next lecture the revision of all of them. okay, so be ready with the doubt so that when I am जब मैं रिवीजन करूंगी तो आप लोगों को उस डाउट्स को क्लियर करना है. ठीक है, now today's lecture it is it. bye.